हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदा यहाँ पे मौजूद है। आज खुदा मुझे और आपको तसल्ली देने के लिए, हमारी जिंदगी में नए काम करने के लिए, हमारे अंदर से वो सारी पुरानी इंसानियत निकालने के लिए, जहाँ कहीं भी हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, नाराजगी है, झगड़े हैं, फसाद है, किसी के लिए हमारे दिल में कड़वाहट है, आज मेरा और आपका खुदा, खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप, खुदा पाक रूह यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद है। वो हमें आजाद करने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए खुदा यहाँ पे मौजूद है। खुदा हमारे दरमियान उतरा हुआ है कि कहीं पे भी खुदावंद के बंदों के ऊपर, खुदा के बेटे बेटियों के ऊपर कहीं कोई असर है, कोई इब्लीसी कूपें हमें इस कलाम को समझने में, इसके ऊपर अमल करने से रोकती हैं। आज यीशु के नाम से उन सारी बदी की कुव्वतों को जहां जहां भी हम बैठे हैं उस जगह से, हमारी जिंदगियों के अंदर से यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ, ताकि जब खुदावंद आज हमसे बात करे तो वो कलाम हमारी जिंदगियों में घर करे, और खुदावंद का ये कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम पढ़ेंगे, हमने कल रोमियो का जो खत है वो खत्म किया, और आज हम पहला करंथियों उसका पहला जो बाब है वो पढ़ेंगे। और हमारे साथ रेडी में कौन है? सिस्टर सोनिया दी पंजाबी च मैं करा। ओके, चलें हम पहली जो 16 आयतें हैं वो पढ़ेंगे और उस पर थोड़ी बात करेंगे। बाकी का चैप्टर जो है हम अगले वीक करेंगे, है ना? तो ठीक है, पहली 16 ठीक है, शुरू करना। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 16 पहली आयतें। हाँ, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ਧੜੇਬੰਦੀ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਪੌਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੋਸਥਨੇਸ, ਅੱਗੋ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਿੰਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਵਾਕ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਅਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟਕ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੈਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪੌਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਫਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮਸੀਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸਪਸ ਅਤੇ ਗਾਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫਤੇਨਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. God bless you. अंजना, खुदा आपका बरकत है। यहाँ पे हम देखते हैं पहला ग्रंथियों जो पहला चैप्टर है, और वह 10वीं आयत से है ना, कि इसमें जो प्रॉब्लम चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि झगड़े हैं, तफरके हैं इस कलीसिया में। और जब हमने रोमियो का खत शुरू किया था, तो उस कलीसिया में हमने देखा, जो शुरू में है पहले चैप्टर में, हमने देखा कि उसमें जो एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें कह लें कि गंदी शहवतों की खुदावंद के बंदा ने बताया, और मर्द जो मर्दों के साथ या औरतें औरतों के साथ, और यानी वो अपनी मन मर्जियां जो थी कर रहे थे। और ये कह लें कि और भी थी काफी प्रॉब्लम है ना उस कलीसिया में। और इस कलीसिया में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रंथियों की कलीसिया, इसमें झगड़े हैं, तफरके हैं, और कि जैसे एक ये जो बहस हुई बपतिस्मे के ऊपर है ना, कि तो इनमें ये एक था, एक जैसे कह लें गुरूर था कि ये आदमियों के जैसे नाम होते हैं, उनके ऊपर इनका बड़ा वो था, जैसे भरोसा या गुरूर था कि हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं, या इसकी वजह से उसको ऊंचा करते थे यानी। तो ये वाली भी इनमें प्रॉब्लम थी है ना। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या खुदावंद का बंदा इसमें हमें बताएगा। लेकिन इस चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद का बंदा उनकी तारीफ भी कर रहा है ना। तो पहली ही आयत में जैसे कि हमें पता चलता है कि पालूस रसूल कह रहे हैं, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल होने के लिए बुलाया गया है ना। यानी ये हमने पीछे सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह में हमाल की किताब में है ना, कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद पालूस रसूल को गैर कौमों के लिए रसूल होने के लिए चुना था है ना। जब वो जा रहा था मसीहियों को मारने के लिए दमिश्क की तरफ है ना, तो पालूस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह नजर आए थे है ना। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खुद ये बोला था कि मैंने तुझे गैर कौमों के लिए चुना है ना। तो पालूस रसूल खुदावंद यीशु मसीह का खुद चुना हुआ जो रसूल है, यानी भेजा हुआ, यानी ये जो बुलाहट थी, खुदावंद यीशु मसीह खुद उसको नजर आए थे। तो ये वो हमें बता रहा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल होने के लिए खुद खुदावंद के बंदा पालूस रसूल को चुना था है ना। और एक और इसमें बात जैसे मैं कहूँगी बड़ी अच्छी पालूस रसूल की हमें लग रही है कि खुदावंद का बंदा जब सलाम करता है, या अ, हमने जो पिछला चैप्टर है उसमें भी पढ़ा कि वो जब भी यानी सलाम करता है तो दूसरों के लिए फजल और उसके इत्मीनान को मांगता है। यानी जो ईमानदार हैं या जिससे वो मिलता है, यानी कलीसिया से या खत लिख रहा है, तो उनके लिए फजल मांगता है। और उनके लिए एक यानी ये उसका एक मैं कहूँ कि अलग सा मखसूस सा अंदाज है कि दूसरों के ऊपर खुदावंद का वो फजल चाहता है कि खुदावंद का तुम पे फजल हो, खुदावंद की तसल्ली इत्मीनान तुम पे होती रहे। ये एक खुदावंद के बंदा ने इस खत में भी हम देख रहे हैं, और जो पीछे हमने पढ़ा रोमियो को, और अगर आगे भी देखें दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 2 आयत में भी खुदावंद का बंदा इसी तरह
کہ यानी एक तो दूसरों के लिए फजल मांगता है, इत्मीनान मांगता है, तसल्ली, और दूसरा ये खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद बाप को जैसे कह लें एक ही करके बताता है। यानी अगर हम पढ़ें दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 2 आयत में, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। यानी एक ही बाप को और खुदावंद यीशु मसीह को हम कह सकते हैं कि इकट्ठा ही या एक ही सांस में बता देता है। तो ये जितने भी फिर इफ्सियों के खत में भी पालूस रसूल ने इसी तरह यही मैं कहूँगी कि लफ्ज़ से वो यूज़ किए कि इफ्सियों पहला बाब उसकी 2 आयत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। फिर पत्रस पहला बाब और उसकी 2 आयत में भी खुदावंद के बंदा ने इसी तरह जो कलीसिया कह लें या ईमानदारों के साथ बात की, बल्कि यहाँ पे हम कहेंगे कि खुदावंद पाक रूह को भी उसने और खुदा बाप के इल्म साबक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। यानी खुदावंद का बंदा अपनी कलीसिया के लिए यानी जब सलाम करता है या उनसे बात करता है या जब खत लिख रहा है तो उनके लिए फजल मांगता है, उनके लिए तसल्ली मांगता है और खुदा बाप को खुदावंद यीशु मसीह को एक ही बताता है। यानी लफ्जों के जरिए वो एक ही बता रहा है कि ये एक है, ये 2 नहीं है। तो इस तरह से एक खुदावंद का बंदा, ये भी मैं कहूँगी कि इस खत में एक जो भेद है हमारे ऊपर खोल रहा है। दूसरा मैं कहूँगी कि ये मुझे और आपको भी ये सिखा रहा है कि हमने जब भी किसी से मिलना है, उसके लिए एक तो बरकत चाहनी है हमने और चाहना है या उसको दुआ देनी है कि खुदावंद का फजल तुम पे होता रहे, खुदावंद का इत्मीनान तुम्हें मिलता रहे, है ना? खुदावंद, क्योंकि ये खुदावंद की क्या है यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशखबरी की वो मनादी जो कर रहा है, मैं और आप भी यही काम एक कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरों को बरकत नहीं दे रही, अगर हम दूसरों को तसल्ली नहीं दे रहे, है ना? हमारे वसीला से, यानी ये एक जैसे कह लें ट्रांसफर नहीं हो रही या हम दूसरों की बरकत नहीं चाहते, दूसरों की तसल्ली नहीं चाहते, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। मिले हैं तो 4 बंदे 2 बंदे बैठ के थे बदखोइयां ही करनियां ने, यानी उसको परेशान ही करना है। तो ये हमारी जो हम मसीही हैं, खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, उनकी ये एक जो बिहेवियर है वो हमारा नहीं होना चाहिए। ये खुदा के बंदा से हम ये भी एक बात जो है पहले सीख रहे हैं कि वो जब भी ईमानदारों से मिलता है, बात करता है, तो वो दूसरों उनके लिए अ, बरकत मांगता है, फजल मांगता है और इत्मीनान मांगता है। और ये इत्मीनान कौन है? हमारा खुदा यीशु मसीह, है ना? तो ये इत्मीनान जो है या तसल्ली वो हम दूसरों को दें। यीशु जो है, जैसे उस उन्होंने क्या कहा, यूहन्ना पतरस ही मेरे ख्याल थे जो कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो यीशु ही है, वही हम दे सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जैसे कह लें गरीब है कोई खाने के लिए, लेकिन हमारे पास यीशु है, वो हम दूसरों को दे सकते हैं। वो तसल्ली खुद ये देखें जेल में है या खुद कैद में होता है, पालुस रसूल जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसके हाथों और पाँवों को बांधा हुआ है, लेकिन वो जब बात करता है अपने कलीसिया से या अपने ईमानदारों से जो, तो उनको तसल्ली देता है। उनको जो तसल्ली देके मैं कहूँगी कि उसके पास थी, जेल में था, लेकिन वो रूहानी तौर पे आज़ाद था। हालेलुया! और हम भी जिस किसी भी इस वक़्त मुसीबत में होते हैं, बीमार हैं, तब भी हमारे पास्टर खुद बीमार होते हैं तो दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, अपनी कलीसिया के लिए। हम शुरू में बड़ा एक ये एक दफ़ा पहले भी मैंने टेस्टिमनी बताया, हाँ, क्योंकि ये हमारे सामने हमारे पास्टर जो थे, जैसे हम नीचे बैठ के प्रेयर कर रहे थे
और उनको हार्ट अटैक हुआ वहां पे, जैसे होता है ना। और जितने भी हम वहां पे कलीसिया थी, तो सारे सबने हाथ उठा के उनकी तरफ हाथ करके हमने प्रेयर की। और खुदावन का शुक्र हो कि जिससे कह लें कि कोई 10 मिनट में ही खुदावन का बंदा उठ खड़ा हुआ। और जो मेडिकल के वहां पे लोग थे, जैसे जावेद था, उन्होंने यही बताया कि ये हार्ट अटैक था, है ना। लेकिन वो कह लें कुछ मिनटों के बाद उठा और फिर लाइन लग गई। फिर लोग, मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या, वो तो बेचारे अभी उनको रेस्ट की जरूरत है, ये लोग क्या कर रहे हैं। कहता उनकी खिदमत ही ऐसी है कि उन्होंने दूसरों के लिए दुआ ही करनी है। आप खुद सोचें कि इतने बड़े दर्द में से, तकलीफ में से कोई बंदा, तो वो किसी के लिए कैसे कर सकता है। लेकिन हम जिनके पास मसीह हैं, जिनके पास खुदावंद है, हमें खुदावंद ने दूसरों को बरकत के लिए, दूसरों को तसल्ली देने के लिए ही चुना है। दूसरों को इसलिए हमें चुना है कि हम चाहें कि उन पे भी खुदावंद का फजल जो है वो होता रहे। हालेलुया। इसलिए अ, हम जो खुदावंद के लोग हैं, ये मैं कहूंगी कि खुदावंद के बंदा से सीखें। और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा यीशु मसीह, यानी ये तीनों एक हैं। ये तस्लीस जो है, इसका मुझे और आपको, मैं कहूंगी कि वाजिया पता होना चाहिए, है ना, कि खुदा बाप हमारे साथ है, खुदा यीशु मसीह, खुदा पाक रूह हमारे साथ है। और इसका इकरार करते रहे, है ना। ये जरूरी नहीं बोलते रहना है अपनी जिंदगियों में, आ, यानी दिखाना है कि मेरा ईमान है। लफ्जों से कई दफा हम, जैसे खुदा के कलाम में से पता चलता है कि ये कौम होंठों से तो मेरा इकरार करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। इसलिए दुआएं जो कई दफा होती हैं, रटी रटी दुआएं, वो तो हम बोलते रहते हैं जी, लेकिन हमारे दिल में ये नहीं होता, या हमारी जिंदगी से, हमारे बिहेवियर से वो नजर नहीं आता कि हमारा खुदा उनके ऊपर ईमान है, हमारा खुदा यीशु मसीह के ऊपर, खुदा पाक रूह जो हमारे साथ है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है पूरा, है ना। इसलिए दुआ जो मुंह से हम बोल देते हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि आपके रवैये, जब मुश्किल आई तो आपको पता हो मेरे यीशु ने मैंने काट लेना है ना। ये है शैतान को दिखाना। शैतान जो है लफ्जों की, आप कह लें मार जो है वो भी ठीक है, लेकिन आपके अंदर से नजर आए। जैसे हम पालूस रसूल को देखते हैं कि वो कैद में था और बीमार भी था। हमने देखा कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, कि उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद उसको शिफा दे, लेकिन खुदावंद ने उसको कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। हालेलुया। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम सब भी कहीं ना, अब सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुश्किल में है या बीमारी में है ना। तो हम अपनी ही मुश्किलें, बीमारियां दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं, तो वो ही हम दूसरों को ट्रांसफर करें। हम उनके लिए तसल्ली का बायस नहीं बनते, हम उनको यीशु शेयर नहीं कर रहे, यीशु को नहीं दे रहे, है ना। हम उनको वो अपनी बीमारियां बता रहे हैं, हम उनको अपनी वो मुश्किलें, वो मुसीबतें शेयर कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा देखे मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं कि जो हम मसीही हैं, हम क्या करें दूसरों को वो फजल जो खुदावंद का मेरे ऊपर हुआ है, वही फजल दूसरों को भी ट्रांसफर करें। वही जो तसल्ली मेरे अंदर है, वही हम दूसरों को ट्रांसफर करें। तो पहले ਅਸੀਂ आप ही तसल्ली पाइए फिर ही दूसरों को देंगे। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा पाक रूह मेरा मददगार है, वो हर एरिया में मदद कर सकता है। ये खुदा ने चाहा तो हम ये खत खत्म करके तो मेरे दिल में है कि हम पाक रूह के बारे में रोज 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 कुछ ना कुछ सीखेंगे, कि वो हमें मदद के लिए दिया क्या, और हमें पता ही नहीं होता। हथियार साडे कोल ते चलाना नहीं आता, गोली भरनी नहीं आती पिस्टल चलानी नहीं आती या तलवार चलानी नहीं आती, हमारे पास है वो, है ना, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, जंग लगता पे तो हम इसके बारे में सीखेंगे।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ भी सीखें कि खुदावंद पाक रूह हर मुश्किल, हर परेशानी किसी भी तरह की है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मददगार देता हूँ। उस खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कहा था कि सिर्फ़ एक काम के लिए तुझे मददगार दे रहा हूँ, है ना? सारे कामों के लिए, कुछ भी है। अ, मैं अपने बताऊँ, मैं सफाई-सफाई करनी होती है ना, तो घर भी बड़ा है और अकेले तो बुड्ढी भी हो गई है ना? तो मैं कहती हूँ खुदावंद पाक रूह मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन तूने मेरी मदद करनी है। तो मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, और कई दफ़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती और उस दिन मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। लेकिन मैं पहले खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदावंद पाक रूह मेरे से ये अकेले नहीं होना। तो खुदावंद मुझे नहीं पता कहाँ से एनर्जी आ जाती है, कहाँ से वो सारी चीज़ें कर लेती है, और कई दफ़ा इतनी भारी-भारी चीज़ें होती हैं, बाद में मुझे जवेद डाँटता, कहंदा, "तू ना करया कर, जिन्ना को तू कर सकनी उन्ना कर ले।" तो मुझे पता नहीं चलता, जब मैं शुरू करती हूँ, तो खुदावंद पाक रूह मेरी मदद करते हैं। इसी तरह भी और भी कोई भी मसला है, जैसे बच्चों की स्टडी है या जॉब पे या कुछ भी, खुदावंद पाक रूह आपकी मदद के लिए हर वक़्त तैयार है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए उससे मदद माँगा करें। खुदावंद जो पाक रूह है, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद बाप हमारे साथ है हर वक़्त, ठीक है? और मैं कहूँगी कि हम मसीही तो बड़े ही अ, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही प्यारे हैं खुदा के। खुदा ने इतने मददगार दिए हैं, गैर कौमों के पास ये है कुछ, ना बाप है, ना बेटा है, ना पाक रूह है ना? तो इसलिए हम तो बड़े ही खुदा के लाडली कौम है। हमारे पास खुदा ने इतने मददगार दिए हुए हैं, हालेलुया। और यहाँ पे जो हमने पहला पतरस उसके पहला बाब 2 आयत में पढ़ा कि जो पाक रूह है, अ, वो हमें फर्माबरदारी करना सिखाता है, यानी खुदा यीशु मसीह की रूह है ना? और यीशु का खून जो है, वो भी हमें पाक साफ करता है ना? खुदा उनका कलाम, खुदा उनका लहू हमें धो रहा है, हमें पाक साफ कर रहा है, या हमें जहाँ कहीं भी हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि अ, इत्मीनान, जैसा कि हमने पीछे भी सीखते आए हैं, कि जब हम कहीं नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, तो बेचैनी आ जाती है हमारे अंदर, या डर या खौफ, इस तरह की सारी जो सिचुएशन है, वो हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम खुदावंद की फरमाबरदारी में चलना शुरू होते हैं, तो सारे काम ठीक होना शुरू हो जाते, सारे बिगड़े काम जो हैं वो संवरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले कहीं आपने कुछ, यानी इस वक़्त हालात जैसे बीमारी का ही मैं आपको कहूँ, मैं बहुत, या कह लें 90% पिछे मसला जेड़ा ना होंदा है, हमने डाइट पीछे सही नहीं ली होती। तो हमारी कहीं न कहीं पे बीमारी जो है वो आ जाती है, पेट खराब या कुछ भी, कहीं दर्द हो रहा है। तो हम पहले उस पे ध्यान दें, जो हम डाइट खा रहे हैं, उस पे ध्यान दें और उसको ठीक करें। तो बाकी के जो एक कह लें प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएँगे। हम साथ परहेज़ भी करें और साथ खुदावंद के लहू को भी लगाते रहें और खुदावंद से शफ़ा जो है वो भी पाते रहें। लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह गुनाह के बारे में है कि हम मसीह में आ जाएँ और फिर भी गुनाह करते रहें, फिर भी गंदगी में, नापाकी में, वही हरामकारी, शराब, और गालियाँ देना, चोरी-चकारी फिर भी करते रहें, तो वो मसीह में आने का फ़ायदा नहीं है ना? और ना ही फिर हम समझे कि हमें निजात जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद ने मुझे और आपको एक दफ़ा शिफ़ा दे दी है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई मैदा ख़राब था, लिवर ख़राब था या कहीं दर्द थी, तो वो, या बीपी हाई हो जाता है या शुगर की प्रॉब्लम है ना? तो हमें पीछे पता है इसकी वजह जो है, कहीं न कहीं हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से हो जाता है, तो उससे परहेज़ करें हम, है ना? जैसे गुनाह से परहेज़ करना है, इसी तरह हमारी डाइट जो है उसमें एक खुदावंद
पाकरू से रहनुमाई मांगे। जब भी रोज अपना कोई खाना बनाते हैं या कुछ, तो खुदावंद पाकरू मेरी रहनुमाई कर, जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है वो ही हमारे घर में आए, वो ही मैं मसाले डालूं, वैसा ही खाना बनाऊं। तो खुदावंद पाकरू आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या कहते हैं, खुदावंद की हिकमत से हर काम हम करें, खुदावंद की मर्जी से हर काम करें, और खुदावंद हमारे सारे जो काम हम गलत कर रहे होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद जो है का बंदा, मैं कहूंगी कि यहाँ पे थोड़ी सी एक तरतीब जो है वो भी सिखा रहा है, और दूसरा कि हम पहले अपने जो कह लें गुनाहों की माफी मांगे, तौबा करें, और ये तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी हमारी जिंदगी में भरना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इस कलीसिया के बारे में ग्रंथियों के हमें पता चल रहा है कि खुदावंद का बंदा कह रहा है कि वो इल्म, सब बातों में कलाम और इल्म की तरह तरह की दौलत से दौलतमंद है। यानी ये जो कलीसिया है इसके बारे में खुदावंद का बंदा एक 4 से कह लें 9 आयत तक तकरीबन, कि उनके अंदर जो पाखरू की नेमतें हैं वो काम कर रही हैं। यानी वो नेमतों से एक किस्म का कह लें दौलतमंद है, भरे हुए हैं। और वो खुदावंद के आ, लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यानी उसके मुंतजर हैं उसके आने के लिए, है ना। और खुदावंद का बंदा यहाँ पे बता रहा है कि वो यानी एक किस्म की पाखरू की नेमतों से जो हैं वो भरे हुए हैं, या माला मार हैं, या दौलतमंद हैं, ये कलीसिया जो है। और खुदावंद का बंदा जो है आगे चल के हमें ये 10वीं आयत से देखेंगे कि अभी तो खुदावंद का बंदा तारीफ कर रहा है, लेकिन आगे उनके साथ फिर उनको बताएगा कि ये तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी हमें पता चलता है कि जो भी हैं, यानी फर्ज करें जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारे, तो हमें कोई ना कोई ऐसी उनमें जो बात है वो हमें ढूंढनी चाहिए या मिल जाती है कि जिसकी हम शुक्रगुजारी कर सकें। तो यहाँ पे भी खुदाउन के बंदा ने इस कलीसिया की लिए पहले शुक्रगुजारी की है कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है, वागरू की नेमतें काम कर रही है ना। तो इसी तरह जब भी हम किसी अपने बच्चे से या अपने शौहर से, बीवी से या बहन भाई या किसी से भी आप एक किस्म की बात करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जो उसके अंदर बुराई है या तो हमें पहले जो उसके अंदर अच्छा हो रहा है उसकी शुक्रगुजारी करें। ये खुदावंद के बंदा ने एक मैं कहूँगी कि इस चैप्टर में 4 से 9 आयत में हमें, यानी मुझे जो मेरे दिल को लगा कि वो पहले तारीफ कर रहा है, जब उनसे बात कर रहा है तो पहले जो उनके अच्छे काम हैं उसकी तारीफ कर रहा है और शुक्र कर रहा है खुदा का कि तुम्हारे अंदर ये खुदा की जो नेमतें हैं वो काम कर रही हैं। खुदा उनका शुक्र है। इसी तरह मैं कहूंगी कि जब हम अपने बच्चों से भी कोई बात करते हैं तो जरूर उनको हर वक्त हम डांटते ही ना रहे, तू तो इंजता है, तू ना कि तू तो कहना नहीं मानता, या तू स्टडी में ठीक नहीं है, या कुछ, या बीवी के लिए अगर शौहर कि तू अच्छी हांडी नहीं बनाती है, या तो पहले उसकी तारीफ करें कुछ जो उसमें अच्छा है। तो फिर उसके अंदर जो गलत हो रहा है या तो उसको हम हाईलाइट करें या उसको बताएं। और ये भी इसलिए जैसा कि आगे ही हम देखते हैं कि ये जो किसने जाके खलवे, अगर मैं सही नहीं बोल रही तो, जिसने पालूस रसूल को आके इस कलीसिया के बारे में बताया कि करंथस की जो कलीसिया है उसमें झगड़े हो रहे हैं, है ना। तो इसने किस लिए बताया, ताकि क्या हो कि पालूस रसूल जो कि एक कलीसिया का जैसे कह लें बाप होता है, जो उस जैसे, तो उसने शिकायत के तौर पे नहीं बताया, लेकिन उसने उसकी बेहतरी के लिए बताया कि इस कलीसिया में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है ना, पालूस रसूल को, है ना।
तो इसलिए जब मैं कहूँगी कि बच्चों के भी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है तो माँ को चाहिए कि अपने जो शौहर है, अपने हस्बैंड को वो बताए। मेरा तो जो भी कुछ बच्चे, यानी शुरू से तकरीबन मेरी आदत है कि कुछ भी होता है मैं जावेद को पहले बताती हूँ कि ये वाला बच्चा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला बच्चा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ताकि फिर वो इसका हल जो है वो निकाले। तो माएँ जो ये एक किस्म की वो अपनी तरफ से मोहब्बत जता रही थी, फेवर कर रही थी, बच्चे दियां कमियां नु छुपाना, वो कोई जो गलत कर रहा है, ये गलत है। ये शिकायत नहीं होती, ये उसकी बेहतरी के लिए होता है कि हम अपने बाप को कह लें या जैसे बीवियां हैं अपने हस्बैंड को बताएं अपने बच्चों की गलतियां, क्योंकि खुदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ है। जैसे पालूस रसूल जो था, एक किस्म का कह लें वो बाप था इस कलीसिया का, या घर में हमारा बाप होता है या हमारा शौहर होता है, तो उसको बताना चाहिए ताकि वो उसका कोई हल निकाले, क्योंकि जो घर का सरबराह होता है, खुदावंद ने हिकमत उसको दी होती है उस घर को चलाने के लिए। वो चाहे बाप नहीं है, फर्ज करें बाप है, माँ है, तो माँ को पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये वाली जो होती है ये शिकायत नहीं होती है, ये बच्चों की बेहतरी के लिए होती है या कलीसिया की बेहतरी के लिए होती है। जिस तरह यानी बड़े जैसे कह लें कोई ब्लंडर होने से पहले उसका कोई हल जो है वो निकल आता है, इसलिए हमें बताना चाहिए ताकि उसका कोई हल जो है वो निकले। कुछ भी बच्चा अगर कोई चोरी फर्ज करे कर रहे हैं, जैसे जावेद ने शायद आपको बताया कि एक दफा ये नहीं पता नहीं वो स्कूल से कोई पेंसिल ले आया था या क्या, तो अ, उसके उसको उसने मारा, उसकी अम्मा ने, है ना। तो ताकि ये बढ़ ना जाए, अगर वहां माँ मारती ना या डांटती ना, तो ये तो आदत बन जानी थी, ये तो फिर जिंदगी भर बंदा उसमें से निकलता नहीं। इसलिए बताने का ये होता है बाप को या माँ को कि उसी वक्त उसका कोई हल जो है वो निकले, बड़ा जो नुकसान होने से पहले अम, कोई खुदावंद की तरफ से कह लें, क्योंकि खुदा ने उसको हिकमत दी होती है। क्योंकि जिस तरह कह लें सुलेमान बादशाह छोटा था, उसको बादशाही एक जैसे कह लें इतना बड़ा मुल्क चलाने के लिए बादशाह वो बन गया था, तो खुदावंद की हिकमत या खुदावंद का मसा उसके ऊपर आके ठहरा था, जिसकी वजह से उसने हुकूमत की थी। इसी तरह जब शादी होती है तो जो शौहर होता है, खुदावंद का मसा उसके ऊपर आके ठहरता है, या बाप है उसके ऊपर ठहरा होता है घर को चलाने के लिए। तो ये खुदावंद की तरफ से होता है, और इसीलिए जो मियाँ बीवी है हमारे जैसे कहें चर्च में, शादी से पहले जोड़े के लिए और खास तौर पे जैसे कह लें जो लड़का होता है उसके लिए बहुत दुआ की जाती है। और जैसे कह लें माँ बाप जो हैं वो रोजा रखते हैं अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए या बेटे के लिए, कि खुदावंद तेरा मसा इनके ऊपर ठहरा रहे, खुदावंद तो इनको आपस में जोड़ के रखना, और हिकमत से, तेरी हिकमत से ये अपनी शादी की जो जिंदगी है वो गुजारे। और हमारे घरों में मतलब मैं कहूँगी कि माशरे में इस तरह की दुआएं जो हैं वो नहीं होती जोड़ों में, जोड़ों के लिए शादी से पहले। लेकिन हमारे मतलब मैंने ये सीखा चर्च में कि शादी जिनकी होनी होती है उनके माँ बाप एक किस्म का कह लें रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि ये जोड़े जो हैं अब इनके ऊपर खुदा का मसा के ठहरे, है ना, कि खुदावन की हिकमत से सारी जिंदगी जो है वो ये फैसले करें। तो इसलिए जो बाप है या शौहर है उसके ऊपर खुदावंद का मसा ठहरा होता है उस घर के सारे निजाम को चलाने के लिए। तो इसीलिए कई दफा हमारे घरों में, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा पता ही नहीं होता, ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਤੇ सारा कुछ ਉਹਦੇ ਤੇ सारा फोकस ਹੁੰਦਾ है। और खर्चे कहाँ से होंगे, ये रसूमात में पड़े होते हैं, दुआ का किसी को टाइम ही नहीं मिलता, है ना। इसीलिए जैसे कल शायद मैंने बात की कि ये रस्मो रिवाज जो है साड़ी एनर्जी ले लेंदे ने, साडा मसा कह लें खत्म हो जाता है। इसलिए हमें दुआओं पे
ज्यादा जो है जोर देना है कि खुदावंद हमें भी हिकमत दे, और जिसकी शादी हो रही है हमारे बच्चे की, उसके ऊपर भी खुदावंद का मसा ठहरे, ताकि घर के सारे निजाम जो है वो खुदावंद की हिकमत से चलाए। हालेलुया। और ये इसने जब पालूस रसूल को बताया कि इस कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, तफरके हैं, तो खुदावंद का बंदा, अब मैं कहूंगी कि इन मसलों को या इनके लिए खुदावंद की हिकमत से उनको समझा रहा है, बता रहा है ना। तो ये हमारे अंदर कोई ना कोई जो है वो होना चाहिए। जैसे कह लें माँ है, या बड़े बच्चों में से अगर हम अंजना या कौन है हमारे साथ रेडी में, हम सीखते हैं पैदाइश की किताब में और सैमुअल की किताब में कि जो जी निकालेंगे अंजना। हाँ जी बाजी, पैदाइश की किताब। हाँ 37 उसका चैप्टर, और उसकी दो उसका दो नहीं, दो आयत, जी जिसमें जी हम देखते हैं कि जो यूसुफ था, वो जी जो भाई उसके गलत काम करते थे आपस में कुछ भी, तो वो अपने बाप को जाके बताया करता था, है ना, पढ़ना। ਜੀ ਜਦ ਯੂਸਫ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਹਾ ਅਤੇ ਜਿਲਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਆਮੀਨ। तो ये ना असल में शिकायतें नहीं होती, वो क्योंकि अपने बहन भाइयों से, सॉरी भाइयों से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और वो नहीं चाहता था कि ये इस तरह जिंदगी गुजारे, इसलिए वो अपने बाप को जाके बताता था, है ना। तो ये शिकायतें नहीं होती, ये हम उसकी बेहतरी के लिए यानी कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो भी अगर हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही होती है, तो अगर हम अपने घर के सरबराह को या अपने पास्टर को बताते हैं ताकि इसका कोई हल निकले, तो ये हमें करना चाहिए। फिर एक और हवाला हम पढ़ते हैं, पहला सैमुअल उसका 25 बाब और उसकी 14 आयत में, ये शायद आपको स्टोरी पता हो, कि जिसमें 25 बाब पहला सैमुअल, जी 14 वर्ष। जिसमें दाऊद जो था, हाँ जी 14 पढ़ना। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਬਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਡੈਡੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। हाँ जी, अगर कोई और पढ़ सकता है तो पढ़, निदा। कहाँ तक पढ़ना 25 है? 14 इंच से 17 आयत तक। पहला सैमुअल। हाँ जी, पहला सैमुअल 25 बाब और उसकी 14 से 17 आयत ओके। तक, जिसमें वो और स्टोरी का जी पढ़ना। हाँ हाँ जी। जी। और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ, और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। हाँ जी, तब अभी थोड़ा आगे। हाँ, हाँ अभी भी पढ़ना। हाँ, तब अभी जेल जब ने वो उसके पास गई थी, हाँ दाऊद के। जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीजे और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 टिकियां साथ ली और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि ज्यों ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उनकी चीजों में से कोई चीज गुम ना हुई,
क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करे। और अभी जेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे ऊंधी गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई, और वो उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझे पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे के तेरे कान में कुछ कहे, और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है, लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब मेरे मालिक खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावन ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपने इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखा नाबाल की माने ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हुजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदावन की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह माफ कर दे, क्योंकि खुदावन यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावन की लड़ाइयां लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के बुकचा में खुदावन तेरे खुदा के साथ बंदी रहेगी। ये तेरे दुश्मनों की जाने वो गोया फलाकन में रख कर फेंक देगा। और जब खुदावन मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाइयां कर चुकेगा और तुझको इसराइल का सरदार बना देगा, तो तुझे इसका गम और मेरे मालिक की ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया। और जब खुदावन मेरे मालिक से भलाई करे, तो तू अपनी लौंडी को याद करना। आगे भी। जहाँ पे लिखा है कि अक्लमंद थी वो ओके। जो। हाँ। दाऊद ने हम्म। अबीगैल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक। हाँ जी। तू खुद भी मुबारक हो, प्रेज गॉड। जिसने मुझको आज के दिन खून भेजी और अपने हाथों और अपना इंतकाम लेने से बाज रखा। प्रेज गॉड। हाँ जी। आगे भी ये स्टोरी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जब कासद जो था वो दाऊद ने भेजा, तो ये जो औरत थी अबीजेल यानी इसकी बीवी नाबेल की, उसने बड़ी अक्लमंदी से यानी उसकी बात को सुना और उसका कोई हल निकाला, है ना। इसी तरह जब हम यानी जैसे खुदावन की तरफ से, जैसे कह ले बीवी जो है अपने शौहर को जब बच्चों के बारे में बताती है, तो वो उसका हल निकालता है अक्लमंदी से, यानी खुदावन की अक्लमंदी से। और वो खून रेजी या जो भी वो दाऊद करने को जा रहा था, उससे वो टल गया। और इसी तरह अगर हम इसको जैसे कह लें बाप से, सॉरी आसमानी बाप से रिलेट करते हैं कि हम आज अगर अपने बच्चों की बुराइयों को छुपा लेते हैं, तो वो मार दी वजह तो या डांट दी वजह तो कि बाप डांटेगा, है ना। तो कल वो बड़ी जो खून रेजी होनी है, या फर्ज कर लें वो रूह ही नहीं बचनी, तो उससे मैं और आप इस अक्लमंदी से बचा सकते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जैसे कह लें मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि ये बुराई में हम मेरा बच्चा फर्ज करे पड़ गया, या कहना नहीं मान रहा, या बदतमीजी कर रहा है, या चोरी है, या कुछ भी ऐसा, या जैसे कह लें नशे में पड़ जाता है, या हरामकारी में पड़ गए हमारे बच्चे, या और भी कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, तो अगर माँ को पता चला है तो वो बाप को बताए, है ना। बाप जो है इसको खुदा की हजूरी में लेके जाए और इस मसले को जैसे कह लें अक्लमंदी से, जिस तरह इस औरत के बारे में कहा है कि ये अक्लमंद थी और खूबसूरत भी थी, तो इसी तरह यानी अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि घरों में जैसे कह लें बीवियां वो इस तरह का ये जो रोल है, माएँ जो है उनको ये करना चाहिए, जिस तरह उस ये ग्रंथियों के खत में हमने पढ़ा कि उस जो खलवे था उसने पालूस रसूल को जाके बताया कि इस कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं, तफरके पड़ गए हैं, है ना। तो वो कासद जो था, यानी यहाँ पे हमने देखा कि वो अबीजेल के पास आया, और अबीजेल ने बड़ी ही अक्लमंदी से
اور خداوند کی حکمت سے اس نے اس مسئلے کو حل کیا، نہیں تو وہاں پہ جنگ لگ جانی تھی، ہے نا. اور داؤد نے اس نابیل جو تھا اس کو، اور میں کہوں گی اس کے سارے جو تھے اس کو ختم کر دینا تھا. تو اس لیے اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون بنا رہے، تو وہ بڑا جو خون ریزی ہونی ہوتی ہے یا بڑا سزا ملنی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو یا اور بھی کہیں، ہے نا، تو اس سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. جس طرح یہاں پہ پالوس رسول کو اس نے آ کے بتایا، اور پالوس رسول اب جو ان پہلے جو مسئلے ہیں یا اس کلیسیا کے، وہ حل کرنے کے لیے کہہ لیں یا خداوند کی حکمت سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کلیسیا کو خط جو ہے وہ لکھ رہا ہے نا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس میں کہوں گی کہ اس لیسن میں یا اس چیپٹر میں خداوند کا بندہ یہی سمجھا رہا ہے کہ ہم باتوں کو چھپایا نہ کریں، وہ کارپیٹ کے نیچے نہ دبا دیا کریں کہ کوئی گل نہیں ٹھیک ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کی خاص مائیں بڑی فیور کرتی ہیں کہ کوئی گل نہیں، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، ہجے انہوں سمجھ نہیں ہے، چھوٹا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹے سے بتائیں گے تو سمجھ لگے گی، ہے نا. تو یہ ایک میں کہوں گی کہ اس لیسن سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا اس چیپٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ اپنے جو باپ ہے اس کو بتائیں. اگر گھر کی سربراہ ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو ماں کو کوئی بڑا بہن بھائی ہے، جیسے یوسف کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا، اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، لیکن اس کو یہ درد یا ایک سمجھ تھی کہ اس نے جا کے اپنے باپ کو بتاتا تھا کہ یہ پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یا اس عورت کی طرح، بچیل کی طرح، جو کہ بعد میں داؤد سے یعنی داؤد کی بیوی تھی، یہ شادی اس سے ہو گئی تھی، نابیل جو تھا وہ مر گیا تھا، اگر آگے اس کی سٹوری پڑھے تو، ہے نا. تو یہ خوبصورت بھی تھی اور عقل مند بھی تھی. خالی کئی باری خوبصورت ہونا ہی بڑی گل نہیں ہوندی، خوبصورت وہ جو ہے نا عقل مند، خداوند کی حکمت سے ہمیں چلنا چاہیے. تو اس کے بارے میں لکھا کہ یہ خوبصورت بھی تھی اور عقل مند بھی تھی کہ جا کے داؤد کے، حالانکہ تو یہ خود داؤد کے قدموں میں گر گئی اور اس نے کہا ہے میرے مالک، ہے نا، اور مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، ہے نا. تو اس لیے میں کہوں گی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، باتوں کو چھپایا نہ کریں، یا جیسے کہ باپ ہے یا ماں ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، جیسے میں اور وڈی ہے نا، تو اپنے شوہر سے، شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر ہم خدا باپ کے پاس جایا کریں، خداوند باپ کے پاس، آسمانی باپ کے پاس، اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کریں، اس کو اپنے سارے مسئلے جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ میرا بچہ کردا پیا ہے، کردا پیا ہے نا. یا تو خداوند پھر ہمارا جو ہے جو فیصلے کہہ لیں یا انتظام یا وہ پرابلم جو ہے وہ حل کرے گا، کیونکہ اور کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا. خداوند نے اگر آپ کے سر پہ باپ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو خداوند ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا شوہر ہے. تو اپنے مسئلے جو ہیں ہم ان کو خداوند باپ کو بتایا کریں، اور خداوند اپنی حکمت سے پھر اس کا حل جو ہے وہ نکالے گا. اس لیے یہ جو ایک میں کہوں گی کہ رول جو ہے یا یہ ایک کریکٹر جو ہے، یہ میرے اندر، یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کی حضوری میں سارے مسئلے جو ہے وہ لے کے جائیں، اس کے قدموں میں رکھیں اور خداوند کی مدد مانگے، خداوند پاک روح سے مدد مانگے، تو ہمارے مسئلے جو ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، سانوں کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کیا کریں کیا ہے، لیکن ہمارے خداوند کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے نا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ہے. آگے جو جھگڑوں پہ بات ہے وہ ہم
اگلے ویک میں کریں گے. میرا خیال تھا کہ ہم اس کو کر لیں گے لیکن ہم اس کو اگلے ویک میں کریں گے. بس ایک ہم بات کریں گے کہ اس کلیسیا کو پاکرو کی نعمتیں جو تھی وہ ملی ہوئی تھی، یعنی نعمتیں جو تھی، اور ان کے اندر ساتھ غرور بھی آ گیا تھا. غرور آیا تھا تو پھر جھگڑے پیدا ہوئے تھے، ہے نا. تو جو نعمتیں تھیں جیسے شفا کی، معجزات کی، نبوت کی، یا جیسے رویا دیکھتے ہیں، یا غیر زبانیں یا غیر زبانوں کا ترجمہ، یہ ان کی زندگی میں کام کر رہے تھے. کیونکہ یہ پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دولت سے دولت مند ہیں، یعنی علم کی. لیکن یہ نعمتیں جو ہیں یہ ان کو دیکھ کے ہم کسی بندے کو یہ نہ سمجھے کہ یہ روحانی ہے نا. تو یہ صرف آج میں اسی پہ بات ختم کرتی ہوں کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، جو آپ کو نظر ہوئی کہ اس کے وسیلے سے شفا مل رہی ہے، یا وہ نبوت کر رہا ہے تو وہ بڑا بندہ روحانی ہے، یا اس کے وسیلے سے معجزے ہو رہے ہیں تو وہ بندہ روحانی ہے. یہ یا غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ ہم اپنے دل میں لے کے آئیں کہ یہ بندہ روحانی ہے. اب روحانیت کے بارے میں اگلے ویک سیکھیں گے، ٹھیک ہے. پر یہ آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی ایسے بندے کے پاس میں کہوں گی کہ اس وجہ سے نہ جائیں کہ وہ تے بڑا روحانی ہے، انہوں تے نظر آ جاندہ ہے، وہ تے نبوت کرتا ہے. یہ اس کی روحانیت کا ایک جیسے کہ پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیونکہ یہ فری میں ملی ہیں ہمیں نعمتیں، یہ خدا نے دی ہیں. جب تک اس کی زندگی میں پھل نہیں آئیں گے تب تک وہ بندہ روحانی نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے اس کو روحانی ماننے کا. تو اس لیے ہمارے بہت سارے مسیحی جو ہیں اس وجہ سے کہ وہ کو شفا ملتی پی ہے تے پجے جانے اسی شفا لین لی وہ معجزے ہو رہے ہیں، یا وہ نبوت کرتا ہے نا، یا وہ غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں یا ترجمہ کر رہے ہیں نا. تو یہ روحانیت کا وہ ایک نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم اس کو روحانی مانیں. یہ یہاں پہ ایک قسم کا پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے بھی سیکھنے کی جو بات ہے، تو اس پہ ہم جو بات ہے وہ، یا یہ جھگڑے کیسے شروع ہو گئے اس کلیسیا میں، اور کیونکہ وہ ان کے پاس نعمتیں تھی. تو آج ہماری کلیسیوں میں یہی ایک بڑی میں کہوں گی وجہ ہے یا جڑ ہے کہ اس میں یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن روحانیت نہیں ہے. معجزے ہیں، شفا ہو رہی ہے، لیکن روحانیت ان کلیسیوں میں یا پھر ہمارے خود کے اندر بھی نہیں ہے نا. تو ہم نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہم نے جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس استاد کے، اس خادم کے پھلوں سے ہم پہچانے. تو پھل سب تو بڑا جڑا ہے، پیرامیٹر ہے کسی کو روحانی ماننے کے لیے، ہے نا. تو اس لیے یہ ہم اس پہ جو ورسز کے ساتھ سے خدا کے کلام میں سے وہ ہم اگلے ویک جو ہے وہ سیکھیں گے، ہے نا. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس اب جیل کی طرح کہہ لیں جو مسا ہے ہمارے اوپر دے لے کہ ہم اپنے جو یا اس قاصد کی طرح خلوے کی طرح کہ اپنے مسئلے خداوند کے پاس لے کے جائیں، خداوند کے قدموں میں رکھے، ہے نا. اور خداوند اس کو اپنی حکمت سے حل کرے. خداوند پاک روح کو، خداوند پاک روح سے کوئی جو بات ہے وہ آپ چھپا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے یا ہمارے اندر رہتا ہے نا. ایک ایک بات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، خداوند کو سب پتہ ہے. اس لیے ہم اس کو جیسے کہہ لیں کہ چھپا نہیں سکتے. نہ چھپایا کریں، وہ تھلے نہ رکھیا کرو کی کہندے نے کارپیٹ دے. اپنے جو بھی آپ میں کہوں گی کہ گندے کام سوچتے بھی ہیں تو اس کی معافی مانگے، توبہ کریں تاکہ بڑے اس سزا سے ہم بچ جائیں. جس طرح داؤد جو تھا اس نے پھر پورا ختم کر دینا تھا جو نابیل کا ایک علاقہ تھا یا جو کچھ بھی ہے نا، تو یا اس نابیل کو ختم کر دینا تھا. تو اس لیے میں اور آپ جو ہیں اس سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم نے چھپانا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ شکایتوں میں نہیں آتا،
یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. یا اگر خداوند سے ہی بات کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں ضروری، جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر نو سارے مسئلے دسنے چاہیے مین بیماری کے، تو پھر ہی وہ دوا جو ہے صحیح طریقے سے دے سکتا ہے. بالکل اسی طرح خداوند باپ کے سامنے ہم کچھ وہ سامنے اچھا بننے کی کوشش نہ کریے کہ میں تے دیکھا خداوند میں نہیں کیتا انہیں کیتا ہے، یہ نہ کہا کرے، کیونکہ خداوند کو سب پتا ہے. جو آپ نہیں کہہ سکتے، جو آپ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تب بھی اپنی فیور میں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ خداوند کو ہمارے اندر یا ہماری سوچوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب پتا ہے. اس لیے اپنے خداوند کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگے جہاں کہیں بھی ہم نے ہماری وجہ سے کہیں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے یا ہمارے رشتوں میں یا کہیں پہ بھی کچھ ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی جیسے کہ لیں جو غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں یا کچھ ہم نے غلط بولا ہے سوچا ہے، تو پہلے سب سے اس کی معافی مانگے، توبہ کریں، اور پھر خداوند سے کہیں کہ خداوند اے مسئلہ ہے، مینوں نہیں پتا، تو حل کر دے ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، نال ہی اپنی صفائیاں دینیاں شروع کر دینے ہیں خداوند کے سامنے، ہے نا، جو کہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی فیور میں نہ بولیں. خداوند ہی مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ میں تیرے تو خوش ہاں، میں تیرے نال ہاں، میں تیرا ساتھ دواں گا، ہے نا. یعنی خداوند کہے، ہم خود ہی کہتے رہتے خداوند میں تے نہیں ویلا کیتا، میں تے بڑا اچھا، میں تے او دن انج کیتا، میں تے، ہے نا. یہ نہیں کہنا ہم نے. خداوند سے معافی مانگے. کئی دفعہ ہم نے صرف سوچا ہی ہوتا ہے غلط، تو خداوند کو بات پسند نہیں ہوتی، ہے نا. تو اس لیے آج میں اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارے حالات کہیں پہ خراب ہیں یا کچھ ہے، جھگڑے آ گئے ہیں، تفرقے آ گئے ہمارے درمیان، جیسا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں، تو خداوند سے معافی مانگے، توبہ کریں اور خداوند کو بتائیں کہ خداوند ان مسئلوں کو حل کر دے، ان کو تھما دے، ان طوفانوں کو، ان آندھیوں کو، بے چینی کو، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں کہ اگر میں نے یہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، پہلا میں یہی کہوں کہ دلہن کے بارے میں شروع سے ہی اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم نے دوسروں کو کپڑے نہیں پہناتے رہنا کہ آپ ہی ننگے رہ جائیے، ہے نا. ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا. میرے اندر یہ غلطی، خدا میں نے یہ کیا، مجھے معاف کر. تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو کپڑے پہنائیں، میک اپ کریں، روحانی طور پہ، ہے نا. سچی مچی نہیں میک اپ کرنا ٹھیک ہے. خود پالوس رسول نے ہمیں کہا ہے کہ روحانی بناؤ سنگار جو ہے ہم کریں، تو اس طرح سے ہمیں خوبصورت جو ہے وہ بننا ہے. تو ہم نے دوسروں کو ٹھیک ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، درد رکھنا ہے، لیکن دلہن نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تسلی دے، اطمینان سے بھرتا رہے. گاڈ بلیس یو. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اس تیرے اچھے کلام کے لیے، تیری میٹھی باتوں کرتے، تیرے دل کے اندر جو باتیں ہیں، جو درد ہیں ہمارے لیے، جو تو میرے اندر سے، ہمارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے، کہ وہ ہمارے اندر وہ گندگی بھری ہے، وہ ہمارے اندر وہ غصہ ہے، وہ غرور ہے، وہ نفرت ہے، وہ ہم معاف نہیں کرتے دوسروں کو. خداوند تو آج مجھے اور آپ کو، خداوند ہم سب کو تبدیل کرنے کے لیے، نیا بنانے کے لیے، خداوند تو نے آج میرے ساتھ کلام کیا، تو نے آج ہم سب کے ساتھ کلام کیا کہ ہم کچھ نہ چھپائیں، تجھے بتائیں، سب کچھ اقرار کریں اور معافی مانگے، توبہ کریں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں صاف کرنے کے لیے، خدا ہمیں پاک کرنے کے لیے. خداوند تو نے اپنے کلام کو خدا
हमें दिया खुदाम यीशु मसीह, तेरे लहू के वसीले से हम धुल रहे हैं, हम पाक और साफ हो रहे हैं खुदाम। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम यीशु। और खुदाम तूने आज हमें सिखाया कि हम दूसरों को बरकत दें, दूसरों को तसल्ली दें, दूसरों के ऊपर खुदाम तेरा फजल मांगते रहें खुदाम। ये हमारा काम है, हम जो मसीह में आ गए हैं, कि हम दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बने, दूसरों के लिए खुदा फजल उनको देते रहें, बरकत का बायस बनते रहें खुदा। दूसरों को खुदा तेरे पास लेके आने का बायस बनते रहें खुदा यीशु के नाम से खुदा। आज जो तूने हमारे ऊपर इस मसीह को उंडेला है, नया खुदा जोर दिया है, नई ताकत दी है, ताकि जहां कहीं भी हमारे अंदर वो गंदगी है, वो नापाकी है, वो कहीं हमारे ऐसे गंदे बिहेवियर हैं खुदा यीशु, तेरे नाम से आज खुदा मैं अपने अंदर से, अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के अंदर से खुदावंद, खास तौर पे जितने यहाँ पे हम मौजूद हैं, एक एक के अंदर से खुदावंद सारी गंदगी को, सारे गंदे बिहेवियर को, नफरत को, गुस्से को, नाराजगी को, जेलसी को खुदा, और खुदावंद अनफॉरगिवनेस की जो स्पिरिट है खुदावंद यीशु के नाम से, उन सारी बदी की कुव्वतों को, उसके पीछे जो स्ट्रांग मैन है खुदावंद यीशु के नाम से, उसके हाथों और पाँव में यीशु तेरे नाम से हम सब मिलकर उसके बेड़ियां पहनाते हैं, उसको जंजीरों से जकड़ के अथाह गड़े में बंद कर देते हैं यीशु के नाम से, के और सील कर देते हैं तेरे नाम से, तेरे लहू से, कि कभी वापस ना आए हमारे अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती की रूह काम करे, शादमानी की रूह काम करे खुदा तेरी पाकीज़गी की रूह हमारे अंदर आ जाए खुदा, तेरी मोहब्बत की रूह हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से, तेरी फरोतनी हमारे अंदर आ जाए, तेरी हलीमी हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से खुदा हम सब मिलकर खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं, और खुदा यीशु के नाम से उनके सारे लिंक को खुदा अपनी रूह, बदन और जान से खुदा ग्रुप के एक एक मेंबर से खुदा उनके सारे लिंक को तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ यीशु के नाम से, ताकि हम सब खुदा पाक हो, साफ हो खुदा, कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री हमारे कपड़ों के ऊपर ना हो, हमारे बदन खुदा पाक हो, हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा हो, हम खुदा तेरे लहू से धुले हों खुदा यीशु के नाम से, एक एक के ऊपर खुदा कोई ऐब ना हो हमारे अंदर खुदा। जिस तरह वो बर्रा जब कुर्बानी के लिए ले जाया जाता था, तो कोई दाग, कोई धब्बा, कोई ऐब उसके अंदर नहीं Yes, होता था खुदा। yes, Lord. उसी तौर Amen. से हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर खुदा कोई Praise इल्जाम Him. ना लगा हो, कोई Yes, शैतान Lord. हमारी तरफ उंगली उठाने वाला ना हो, कोई केस Yes, हमारे Lord. खिलाफ उसने दायर ना किया हो खुदा यीशु के Yes, नाम से, Lord. एक Yes, एक के Lord. ऊपर खुदा तेरे पाक मसे का मांगती हूँ खुदा, तेरे यीशु नाम से वो Amen. सारे Amen. खुदा केस जो हमारे खिलाफ उसने दायर किए हैं खुदा यीशु के नाम से कैंसल कर देती हूँ, उसके एक एक Yes, नुक्ते Lord. को यीशु तेरे नाम से मिटा देती हूँ, तेरे लहू से धो के Amen. पाक और साफ कर देती हूँ यीशु के नाम से खुदा हम तेरी धूलन खुदा यीशु पाक वो जो कपड़े हैं, वो रास्तबाजी का लिबास हमने सब ने पहना हो खुदा, वो चमकदार लिबास हमने Yes. पहना हो यीशु के नाम से खुदा ताकि खुदा Amen. यीशु मसीह जब तू आए तो हम हवा में उड़ कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदा, Yes, Lord. और दिलेरी के साथ खुदा तेरे सामने आ सके, खड़े हो सके खुदा, क्योंकि हम तेरे हुक्मों पे चलने वाले लोग, हम तेरे खुदा का बेदार बेटा है, वही रूह हम आके खुदा हम दिलेरी के साथ वो जगह जो तूने हमारे लिए तैयार किया खुदा यीशु मसीह, दुश्मन को अपने पांव तले कुचल के, रौंद के उस Yes, जगह Lord. तक जा सके यीशु के नाम Yes, से Lord. खुदा। और खुदावंद जितने हमारे ग्रुप में नहीं आ रहे किसी भी वजह से खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तू उनको भी खुदावंद वो कुव्वत दे, वो ताकत दे के वो दुश्मन की फौजों को अपने पांव तले कुचल के, रौंद के In the खुदावंद name of तेरी इस हजूरी में आ सके, ताकि वो भी वो सारी बरकत ले सके खुदावंद जो तू अपने लोगों को दे रहा है खुदावंद, वो जोर, वो ताकत उनके अंदर भी ट्रांसफर हो यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। Amen. Yes,
बड़े रहम से, बड़े फजल से खुदा अपने बच्चों को लेके आ खुदा यस्सु के नाम से। और जितने भी हमारे ग्रुप में इस वक्त बीमार हैं खुदा यस्सु तेरे नाम से वो शिफा पाए, मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। इस वक्त जो अपनी बॉडी में कमजोरी को फील करें खुदा तो उनको तवानाई दे खुदा यस्सु के नाम से, कुव्वत दे, ताकत दे खुदा यस्सु मसीह नासरी के नाम से। और जहां कहीं भी कोई गले में खराबी है, कोई लिवर में खराबी है, कोई मैदे में खराबी है खुदा कहीं खून की खराबी की वजह से जिस्म में कहीं पे भी कोई एलर्जी है खुदा यस्सु के नाम से खुदा आज तेरे बच्चे मुकम्मल तौर पे शिफा पाए। तेरे शिफा बख्श लहू को एक एक के ऊपर लगा देती हूँ। जितने भी बीमार हैं खुदा हमारे इस ग्रुप में और इस वक्त मीटिंग में जो मौजूद हैं खुदा यीशु तेरे कुव्वत वाले, तेरे कुदरत वाले लहू से आज धुल जाए तेरे बच्चे खुदा। और जो परेशान है खुदा आज तू तसल्ली देना खुदा तू इत्मीनान से भर देना खुदा। तू इत्मीनान का सर चश्मा है खुदा। वो तसल्ली, वो इत्मीनान तेरे लोगों के लिए मांगती खुदा यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा जिस तरह पतरस ने कहा, जिस तरह यूहन्ना ने कहा खुदा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन खुदा मेरे पास यस्सु है, वो मैं इन सबको देती हूँ खुदा। जितने भी खुदा ये रूहें तूने मुझे दी हैं खुदा ताकि इनकी जिंदगी में मौजे होना शुरू हो जाए, करामात होना शुरू हो जाए। जिस तरह वो लंगड़ा जो था वो छलांगे मारना शुरू हो गया, खुशी से ललकारना शुरू हो गया। आज खुदा जितनी भी रूहें ये यहाँ पे मौजूद हैं जो तूने मुझे दी हैं खुदा वो खुशी से उछलना शुरू हो जाए, छलांगे मारना शुरू हो जाए यस्सु के नाम से। वो लंगड़ापन, वो जहाँ जहाँ कहीं कमजोर हैं, जहाँ कहीं खुदा ये गिरे हुए हैं खुदा आज खुदा तू इनको सीधा उठा के खड़ा कर दे यस्सु के नाम से, ताकि ये इब्लीस को अपने पांव तले तेरे जोर से कुचल सके। और इब्लीस जो इस वक्त जहां कहीं भी किसी को दुख दे रहा है, किसी को बीमारी की वजह से, ये ज़हनी टॉर्चर की वजह से खुदा आज इब्लीस जो है खुदा शर्मिंदा हो, क्योंकि तूने अपने लोगों को खुशी से भर दिया, तूने अपने लोगों को शिफा से भर दिया खुदा। आज वो कुड़े यीशु के नाम से खुदा आज खुदा इब्लीस को खुदा आग लगे यस्सु के नाम से खुदा। और हम तेरे लोग खुदा तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा भरते जाएं खुदा। खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान, बहाली हमारी जिंदगी में आ जाए यस्सु जी तेरे नाम से। आज खुदा जितने भी खुदा हम कमजोर हैं तेरी कुव्वत से भर जाए खुदा, तेरी तवानाई से भर जाए यस्सु के नाम से। हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाता उस तख्त तक। तब तक हमारे ऊपर खुदा उनका मसा ठहरा रहे यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया।